Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. I have already discussed about the exercise 2.1 and 2.2 for class 9. Okay. Now today we will discuss about these two important theorems, remainder theorem and factorization theorem. Now before it, first we discuss about the division algorithm. Now there are two questions that we discuss using the division. Now first question is divide 3x square plus x minus 1 by x plus 1 and find its quotients and remainder. Before it, in smaller classes, we already discussed about the numerical value. Suppose 15 is divided by, suppose 7. It's the same method. Now 7 into 1, 7, 7 into 2, 14. So 2 into 14 and remainder. So minus, यहाँ sign हम change कर रहे हैं minus and remainder is 2. So remainder 2 and quotients is 2. So also this number, write in the algorithm form, 15 is equal to 7 into 2. This is the 7, that means it is the dividend. Write in the form of capital D. But here write in the polynomial form, write this is the polynomial, suppose in form of x. And this 7 is the division by, suppose gx. Gx is the another polynomial. And into 2 is the quotients. So write quotients in the also form of x and plus remainder. Then plus is, remainder is 2. 7 into 2, 14. And remainder is 1. Sorry, remainder is here 1. So write here 1. So this is the Rx. This complete formula, this algorithm is called as a remainder theorem, as a division algorithm. Okay, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए. ये तो बात हो गई सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम. Okay. Now my first question is divide the 3x square plus x minus 1. Divide by x plus 1. Here polynomial px is given 3x square plus x. Write this number as 3x square plus x minus 1 and then x plus 1. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है. हमें फर्स्ट टर्म लेकर आना है 3x square. Here first term is 3x square and here first term is x. ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस 3x स्क्वायर आ जाए? देखो आपको यहाँ 3 चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट मीन्स हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. x स्क्वायर पावर इज 2, 1 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए. 2 minus 1 1. सो हमें 3x से मल्टीप्लाई करना है. जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपको यहाँ लिखना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको नंबर क्या मिल रहा है? 3x into x, 3x स्क्वायर. नंबर सेम. अगेन 3x into 1 3x, ये आपको एज इट इज लिखना है यहाँ पर. नेक्स्ट टर्म सेम आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट टर्म एज इट इज आपको रखना है. साइन चेंज माइनस माइनस. साइन क्यों करते हैं डिवीजन मेथड में आपको मालूम ही है. फर्स्ट टर्म विल बी कट. -3 and +1 is -2x and remaining number is as it is. Again this number is divided by x plus 1. जब तक डिवाइड करना है, जब तक पावर जो है इससे लेस देन ना हो जाए. अभी पावर इक्वल टू है, लेस नहीं है. तो चलिए इस बार मुझे -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए. x चाहिए, x ऑलरेडी है. नाउ राइट हियर -2. -2 into this one is -2x and -2 is this one -2. Sign will be changed. So plus and plus, first is cut and +2 and -1 is +1. So it is the remainder and it is the quotient.
and write this as it is. Px is equal to gx into qx plus rx. Now what is px? Px is 3x square plus x minus 1. What is gx? Gx is x plus 1. And qx is 3x minus 2 and plus rx. Rx is means 1. This is 0 degree. So आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वापस क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कीजिए, आपको 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 मिलेगा. तो ये एक प्रूफ भी हो जाता है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं. क्लियर? एक सम और करते हैं जिससे आपका मेथड और भी क्लियर हो जाए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर देन पावर 2. This time we take the power 3. The degree is the 3, that means polynomial of px of degree 3 and divide by x minus 1. So this time 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 and divide by x minus 1. थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ. यहाँ पे आपको 3x4 चाहिए तो इस बार मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 1 4. एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए. 3 इंटू 1 3, दिस इंटू दिस x पावर 4 सेम आ रहा है. तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. और आपको अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है. माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस 3x क्यूब. अब देखो x क्यूब की अगर टर्म है तो ठीक है, अदरवाइज उसको साइड में लिखना है आपको अलग से. और नेक्स्ट जो रिमाइंडर जो आएगा उसमें हाईएस्ट पावर टर्म पहले लिखनी है और लोवेस्ट टर्म आपको बाद में लिखनी है. तो नाउ 3 माइनस 3x क्यूब ये आपको यहाँ लिखना है. माइनस एंड प्लस साइन चेंज. इस बार यहाँ नेगेटिव है इसलिए मैंने प्लस लिखा है. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस टाइम माइनस 4 एंड प्लस 3 प्लस 1. So plus x cube. Remaining number as it is minus 3x. This number as it is minus 1. Again this number divided by x minus 1. तब तक डिवाइड करना है जब तक पावर जो है लेस देन ना हो जाए. ओके, नाउ अगेन x क्यूब इस बार मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. दिस इंटू दिस x क्यूब एंड दिस इंटू दिस माइनस x स्क्वायर. इस बार आपको मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था उसको अलग से लिखना है. माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज माइनस एंड प्लस इट इज केप्ट. इस बार आपको ये दो नंबर तो एज इट इज लिखने ही है, लेकिन यहाँ पर पहले पावर 2 जो टर्म्स हैं वो आपको पहले लिखनी है. तो प्लस एक्स स्क्वायर राइट हियर and then write minus 3x and then minus 1 and again divide by x minus 1. This time multiply by x only and write here plus x. This into this x square, this into this minus x, now again minus x. Now minus and plus it is cut and minus 3 and plus 1, minus 2x and minus 1, x minus 1. Again this time minus 2 यहाँ पे लिखना है. Minus 2 into x, minus 2x and minus minus plus 2. Sign change, cut, plus minus 2 and minus 1, minus 3. इस बार आपको रिमाइंडर ये मिल रहा है और आपको qx ये मिल रहा है. आगे मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया है कि अब यहाँ पे जो पावर है वो इससे लेस देन होगी. यहाँ पे जो भी पावर है x की वो 0 है. माइनस 3x रेज टू द पावर 0 एंड x रेज टू द पावर 0 मीन्स 1. सो यहाँ पे आपको x रेज़ टू दी पावर 1 है. अब आगे आपको डिवाइड नहीं करना है. ये तो बात हो गई. ये आप आगे चलकर 10th क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम लोग. 10th क्लास में देखना एक बार, ये मैंने और भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. अभी हम इसको ये समझना है कि आपको डिवाइड कैसे करना है. इज क्लियर? अब यहाँ हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की. ये तो सिंपली हमने क्या देखा कि डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय द अनदर पॉलिनोमियल.
एक पॉलिनोमियल को आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आप उसका क्वोशंस एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो हमें देखना है। रिमाइंडर थ्योरम इज द वेरी सिंपल, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम, अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और फिर मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, क्या ऐसा हो जाए कि विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवाइडिंग वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही है कि अगर हम डिवाइड ना करें फिर भी हम बिना डिवाइड किए हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब कैसे फाइंड आउट करना है ये रिमाइंडर थ्योरम आपको बताएगी। तो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, नाउ नेक्स्ट इज द रिमाइंडर थ्योरम। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे ही है। रिमाइंडर थ्योरम एंड प्लस जो अपन ने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने डिस्कस किया। सपोज सिंपली वन पॉलिनोमियल px इज गिवन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट px इज अ पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट ऑलरेडी आप बुक में देख सकते हैं, बुक में ऑलरेडी कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन है। इफ px is a polynomial and simply and a is a real number of degree greater than or equal to 1, एक ऐसा नंबर जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, देन remainder is let px is a polynomial and a is a real number and x minus a is another polynomial of degree ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x माइनस 1 जो है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देन रिमाइंडर इज pa। उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, pa का मीनिंग क्या होगा, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है px, उसमें x की वैल्यू आप a पुट करके आप एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी या जो भी पॉलिनोमियल आता है, लेकिन जब आप a फाइंड कर लिखते हो, a एक रियल नंबर है तो सिंपली यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही वैल्यू रिमाइंडर होगी। सिंपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। अभी आपने जो भी रिमाइंडर्स फाइंड आउट किए क्वेश्चंस के लिए, सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसी क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जांपल 1p polynomial is given, px equal to 3x4 minus 4x cube minus 3x and minus 1, and a is a, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, a is the real number, तो x minus a से आपको डिवाइड करना है। ये आपको gx गिवन है, अब px गिवन है, gx गिवन है और डिवाइड नहीं कर रहे, पहले हमने डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट किया। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होगा pa, बट हियर a, व्हाट इज द a? अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 गिवन है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट करेंगे 1, तो रिमाइंडर आपके लिए क्या हो जाएगा p1 पुट करते हैं। 3 into 1 power 4 minus 4 into 1 power 3 minus 3 into 1 and minus 1. Now simplify it. 3 minus 4 minus 3 minus 1. Power 4, power 3 and power 1. That means 1 power is any power. That is answer is same. 3 as it is minus 4, 3 and 1. 4 plus 3, 7. And 7 plus 1, 8. Means minus 8. And answer minus 8 and plus 3. Minus 5. So minus 5 is 8's remainder. It is the answer. इस बार हमने क्या किया, हमने फाइनली
रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया उसका -5। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसी पॉलिनोमियल को। 3x4 -4x3 -3x एंड -1। ओके, सेम कोई भी आप सम ले लीजिए। आप फर्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं 3x² px = 3x² + x and -1, और इस बार आप डिवाइड कर रहे हैं x + 1, तो इस बार आपका रिमाइंडर होगा p - 1। इसको इक्वल टू 0 करो पहले और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज -1। तो नाउ 3 -1 power 2 plus -1 and -1 equal to -1 power 2 is +1, that is +3 as it is, plus minus -1 and -1 equal to 3 -1 -1 is -2 is equal to 1. 1 is the remainder. This method, this algorithm is called this method is called remainder theorem. तो यह हमने रिमाइंडर थ्योरम को हमने डिस्कस किया, और इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। 2.1, 2.2 we have already discussed, but today we discuss exercise 2.3 and next exercise 2.4 based on factor theorem. Factor theorem and remainder theorem almost आपको सेम नजर आएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिंपली यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। देखो, कोई भी नंबर अगर फैक्टर है, सपोज 15 डिवाइड बाई 3, 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो व्हाट इज द 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। 15 डिवाइड बाई 5 से भी 15 डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स रिमाइंडर अगेन 0, दैट मीन्स 5 इज द अनदर फैक्टर ऑफ 15। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वही नंबर उसका फैक्टर बन जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सपोज मैं अगर ये लिखता हूँ, फर्स्ट राइट द फैक्टर थ्योरम। Factor theorem, let Px is a polynomial, okay, and x minus a is another polynomial greater than or equal to n of degree greater than or equal to n. तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, इफ x p a, अगर आप a पुट करते हो दैट मीन्स इट इज रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे x माइनस a इज ए फैक्टर। आपने अगर ये प्रूव कर दिया p a इक्वल टू 0, रिमाइंडर पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा, x माइनस a इज ए फैक्टर, डायरेक्ट लिख दिया x माइनस इज ए फैक्टर। हमें ये बताना है इज फैक्टर और इज नॉट ए फैक्टर। सेकंड, सपोज अगर यहाँ पे आपने ये प्रूव किया कि इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं x माइनस इज ए नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर, अगर ऑलरेडी आपको गिवन है कि x माइनस इज ए फैक्टर, अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं देन PA मस्ट बी इक्वल टू 0, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के। इफ PA 0 देन x माइनस इज ए फैक्टर, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर देन PA इक्वल टू 0। हो गया आपका मतलब। फाइनली हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और x माइनस a से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो x माइनस ए उसका फैक्टर बन जाता है। और अगर पहले से ही गिवन हो कि वो फैक्टर हैं तो PA और पहले से ही वो इक्वल टू 0 होगा। जिसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 के लिए। x³ - 2x² +
142x माइनस 120। चलो इजी क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ये नंबर्स ग्रेटर देन आ रहे हैं, तो ये वैसे भी सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। बुक में से मैंने आपकी एक्सरसाइज में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 9x एंड माइनस 5। इट इज द पॉलिनोमियल इज ऑलरेडी गिवन। अब करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट तो हम फैक्टर कर नहीं सकते। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले हमें एक ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये 0 के इक्वल हो। तो मैंने एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हमें ये देखना है नंबर्स, रियल नंबर जो है वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, +-1 +-2 +-3 +-4। मेरे ख्याल से अभी इस लेवल पे आपको 4 से आगे जाने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली अगर ये सभी नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर ज़्यादा हैं तो आप प्लस के साथ चलिए। आप 1 पुट करके पहले रफ में चेक करिए कि क्या ये 0 हो रहा है क्या। तो चलो पहले मैं 1 पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, दिस इज 1, 3, 9 और 5 ये सभी नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन हो जाएंगे और 0 नहीं होगा। मैं माइनस पुट करके देख लेते हैं एक बार। पुट -1, so this is the -1 because power of 3 is माइनस। ये ऑलरेडी वापस प्लस हो जाएगा तो ये -3 रहेगा, और यहाँ ये -1 होगा तो माइनस +9, और दिस इज द -5। एक बार चेक करते हैं, 0 आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब 3 - 1 होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके बाद शो करना आपको, पहले रफ में चेक करना आपको कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर 2 लेंगे, -2 लेंगे, 3 लेंगे, -3 लेंगे। 3 के आगे आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, -1 -5। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस पावर 3 इज -1, माइनस प्लस -3 एज इट इज, -+9, दिस इज द -5 इक्वल टू -1 -3 -5 -9 एंड +9 इक्वल टू 0। 0 आ गया। दैट मीन्स आपको क्या मिला, आपने x की वैल्यू क्या पुट की, -1 को इधर शिफ्ट किया तो आपने एक फैक्टर फाइंड आउट किया, x + 1 इज ए फैक्टर। दिस पॉलिनोमियल इज गिवन ऑफ डिग्री 3। अगर डिग्री 3 है तो दे आर 3 फैक्टर्स। जितनी डिग्रीज होती हैं, जितनी पावर्स होती हैं, उतने फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। अब अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हो तो एक वैल्यू और पुट करो, फिर दूसरी वैल्यू और पुट करो। थोड़ा सा ये मेथड लॉन्ग हो जाता है। थोड़ा सा अपन 8th क्लास के बेसिस पे चलें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर x + 1 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक फैक्टर अपन और फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो थोड़ा सा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। x + 1 अगर आपको फैक्टर मिल गया तो आप एक टेक्निक यूज कीजिए, ये x + 1 राइट 3 टाइम्स, x + 1 एंड देन x + 1। 3 पावर है, मैंने 3 टाइम्स बार लिखा उसको। अब ध्यान से देखना, मुझे ये पॉलिनोमियल एज इट इज बनाना है। फर्स्ट मुझे चाहिए x3, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, x², बिकॉज x² × x x3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x³ तो आ चुका है। अब मैं x² को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो +x², ये नंबर आ रहा है। अब x² में आपको क्या चाहिए, -3, और ये +1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स इट इज द -4x। जरा सोचो, -4x को इससे इंटू करता हूँ तो -4x²। इसको सोल्व करके देखो, +1 एंड -4 इज -3²। ये नंबर मिल गया, ये नंबर मिल गया। ये रॉन्ग कभी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, ध्यान से देखना। ओके, तो -3² आपको मिल गया। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -4x। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर इज +1, -4x एंड +1 इज -4x। -4x आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए ये -4x। अब x में आपको क्या चाहिए, -9।
-4 ऑलरेडी आ रहा है, तो इस बार आप इसको, और x ऑलरेडी, तो -5 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई, -5x एंड दिस -5x ऑलरेडी हो गया, तो -5x एंड -4x इक्वल टू -9x, तो इस बार -9x भी आ गया। अब एक काम करते हैं, लास्ट नंबर इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। -5 इंटू 1 -5, तो लास्ट टर्म क्या है, -5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो भी नंबर सेलेक्ट किए हैं मल्टीप्लिकेशन में वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर लास्ट टर्म -5 नहीं आता है तो इसका मीनिंग हुआ कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, और उसको वापस एक बार चेक करो। अब वापस से क्या करना है, ये एक नंबर में एक पॉलिनोमियल बन गया, x plus 1 x plus 1 x plus 1, you take the common, so x plus 1 is the common, so next number is x square, remaining number -4x and -5. It is the quadratic polynomial, and this polynomial using the splitting middle term now factorize. So x plus 1 right here as it is, इस बार मुझे फैक्टर करना है, 5 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया 5, और फैक्टर ऑफ 5 इज ओनली सिंगल फैक्टर, 5 इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर, मुझे माइनस का नंबर चाहिए, तो -4x एंड प्लस एक्स एंड -5, सिंपली -4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है क्योंकि -5 है, और -5 और +1 इस बार -4 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर आना चाहिए और एडिशन के अंदर मिडिल टर्म आना चाहिए, इसी को मेथड को हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हो गया आपका आंसर, x plus 1, make the pair of 2 and take the common, this is 1, x is common and x minus 5, plus no number is common, so only single 1 is common, so x minus 5, ये दोनों सेम होने चाहिए। Take x minus 5 is again common, and remaining is x plus 1. This time x plus 1 there are two factors are same factors आ सकते हैं, no problem, but 3 factors आ रहे हैं, one is x plus 1, second x minus 5 and third is x plus 1, so it is the final answer, that means it is the factor of given this cubic polynomial, x cube minus 3 square minus 9x minus 5। इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डाउट्स प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करते रहेंगे। एक बार कोई भी डाउट्स हो एक्सरसाइज में, आप मंडे को आप स्कूल में आ सकते हैं। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 9 to 12 o'clock, 9 बजे से 12 बजे तक मैं स्कूल में रहूँगा। आपको कोई भी डाउट हो, मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, गुड डे।